الہی بیت کے اندر جو آج کی اہم ٹیچنگ رائے حق اور حقانی کے حوالہ سے یعنی ٹرو وے کے حوالہ سے جو آج تعلیم ایپیسوڈ میں دینا چاہوں گا، جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو لڑکے نے انڈیا کے اندر ایک کویسچن کیا، جس کے اندر اس نے اپنے ہندوازم کو ٹروتھ کے اندر بتانے کی کوشش کی۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب اس نے یہ کویسچن کیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ان کے ریلیجن اور ان کے رہبر اور ان کے اتار جو ان کے اوپر اس مذہب کے اندر آئے، ان کو بھی ٹروتھ کے اندر اس اینگل سے لے کر وہ گیا کہ اسلام کے مطابق جو 1,24,000 انبیاء آتے ہیں، تو اس دور کے اندر جو ہندوازم کے اندر ان کے رہبر اتار آئے تو وہ اس دور کے اندر وہ ان میں ان کا شمار کرتا، جبکہ کتاب مقدس کے اندر بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور جو لاجک ہے، جو ٹروتھ ہے دنیا کے اندر، خدا جو اندیکھا خدا ہے، ٹرو گاڈ ہے، اس کا کلام ٹروتھ ہے، سچائی ہے۔ گریک ورڈ الیتھیا جس کا مطلب ٹروتھ ہے، ٹروتھ کا مطلب جہاں جھوٹ نہیں ہے، تو جہاں جھوٹی تعلیم آ جاتی ہے، بت پرستی کی تعلیم آ جاتی ہے، اور ایسے گاڈ گوڈیس جو کیڑے مکوڑوں کی صورت میں اندیکھے خدا کی جو روح ہے اس کی صورت کو بدل دیا، تو گویا پولیتھیزم کے اندر جیسے جاپان کے اندر لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں تو لاکھوں بت انہوں نے تراشے ہیں، اور پھر یونان کے اندر پرانے دور کے اندر گاڈ گوڈیس تھیں، اور انہوں نے بھی کیڑے مکوڑوں کی صورت میں اندیکھے خدا کے جلال اور اندیکھا خدا جو روح ہے اور جس کی عبادت تھیزم کے اندر ایماندار کرتے ہیں اور کرسچینٹی کرتی ہے، اور تھیزم کے اندر وہ جو ہر ایک خدا کو ٹرو گاڈ کہتا ہے، سچا خدا کہتا ہے، جس طرح کرسچینٹی کے اندر ہم یہوہ کو ٹرو گاڈ کہتے ہیں، تو اس کے ماننے والے بت پرست نہیں ہو سکتے۔ تو بت پرستی کا ریلیجن رکھنے والے، جھوٹی تعلیم کا ریلیجن رکھنے والے، نفسانی خواہشات کے اندر پھنسے ہوئے لوگ، چوری چکاری کے اندر اور فورنیکیشن اڈلٹری کے اندر، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ایسے لوگ نالائق حرکتیں کریں گے، اور ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے کلچر کے اندر، ان کے ملکوں کے اوپر خدا کا غضب رہتا ہے، اور وہ مشکلات کا، سزاؤں کا شکار رہتے ہیں۔ کال، وبا، زلزلے جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر آتے تھے، ہر قوم کے اندر جو پولیتھیزم کے اندر یعنی بتوں کی پرستش کرنے والے کروڑوں لاکھوں، تو ہندوازم بھی جو ہے وہ بتوں کی پرستش کرنے والا، اور الہی خدا کی ذات کو انہوں نے کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا، مگر وہ کلیم ٹروتھ ہی کا کرتے ہیں، سچائی ہی کا کرتے ہیں۔ اور یہ کویسچن اس ہندوازم کے اندر رہنے والے نے کیا، تو گویا دنیا کے اندر دیگر جو ریلیجن بت پرستی کے اندر ہوں گے، جھوٹی تعلیمات کے اندر ہوں گے، پولیتھیزم کے اندر ہوں گے، یعنی زیادہ خداؤں کی پرستش، عبادت بتوں کی کرنے والے اور گھنونے کام، برے کام کرنے والے، سنفل نیچر کے اندر، ماروسی گناہ کے اندر رہنے والے، تو ان کی زندگیوں کے اندر کبھی اچھا پھل نہیں لگ سکتا، نہ ہی برکتیں ان کی زندگیوں کے اندر وقوع کے اندر آئیں۔ اور اگر وہ تھیزم کے اندر ہے اور خدا کی عبادت کرتا ہے، سچائی کی وہ ورشپ کرتا ہے، کیونکہ یہوہ خدا، الوہیم خدا یا الہی ہے، وہ تو ٹرو گاڈ ہے، یسوع مسیح بھی ٹرو ہے، ہولی اسپرٹ بھی ٹرو ہے، اور اس کا کلام بھی ٹروتھ ہے، اور اسی لیے یوحنا کی انجیل میں لکھا کہ وہ اس کا کلام سچائی ہے، اور پھر وہ یہ پریئر کرتا ہے کہ اپنے کلام سے یعنی سچائی سے مقدس کر۔ تو سچائی جہاں پر ہوگی وہاں ہولی لوگ ہوں گے، جہاں ٹروتھ ہوگی، الیتھیا ہوگا یعنی ٹروتھ ہوگی، وہاں پر جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو خدا سچا خدا ہے اور ابلیس جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے، اور اس کی تعلیم جو دنیا کے اندر وہ دیتا ہے اس میں جھوٹ ہے، نفسانیت ہے، نالائق حرکتیں ہیں، شیطانیت ہے، قتل و غارت ہے، اور فورنیکیشن، اڈلٹری، ہر طرح کا برا کام۔ تو برے کام کرنے والے، جھوٹی تعلیم رکھنے والے، ان میں ٹروتھ نہیں ہوتی۔ تو جب رائے حق کی بات ہوگی، حقانی کی بات ہوگی، تو گویا حقانی یعنی ٹروتھ پر عمل کرنے والا، ٹروتھ کو سننے والا حقانی ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر بھی ٹروتھ نہیں پائی جاتی تھی، ان کا ریلیجن تو ٹرو تھا، یعنی یہوہ ٹرو گاڈ کی طرف سے آیا تھا،
मगर उन्होंने भी गैर कौमों के पैगनिज्म के अंदर पैगन गॉड गॉडेस उनकी तरफ वो चले गए, बुतों की प्रस्तिश की। और हिस्ट्री हमें बताती है जब हम यसाया, यर्मिया, हिस्कियल की किताबों को पढ़ते हैं, डोमेस्टिक प्रॉफिट जो ओल्ड टेस्टमेंट के हैं, कि किस तरह बनी इसराइल ने बुतों की प्रस्तिश की और स्पिरिचुअल फॉर्निकेशन, स्पिरिचुअल अडल्ट्री के अंदर पड़ गए और खुदा उनसे दूर होगा, यानी वो सच्चाई से दूर हो गए, ट्रूथ से दूर हो गए। और उन्होंने फिर सजाएं उठाई और सारी कौम वो तितर बितर होगी, असीरी में, बेबीलोन में चली गई। और 1%, 7%, 14%, 21% काल वबा, हर तरह की सजा, जंगो जदल, कत्ल गारत उनकी जिंदगी के अंदर आया। और फिर जब क्राइस्ट मसाया इस दुनिया के अंदर आया तो वो तालीम देने लगा इजराइल में आकर। उसने यही कहा, सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यानी उनको बताया जा रहा है कि वो झूठी तालीमात, बुतों की तालीम से हट जाएं। तो अगर हिंदुइज्म को कोई सच्चाई की तरफ कह रहा है, वो तो पॉलीथीज्म के अंदर है, वो तो बुत परस्ती के अंदर है, वो तो झूठी तालीमात के अंदर है। यानी हर वो रिलीजन जो बुत परस्ती करता और सिखाता है और बहुत से देवताओं, देवी और देवताओं की प्रस्तुत करते हैं, कभी राय हक की तालीम नहीं रखते और ना ही राय हक उनकी जिंदगियों के अंदर है, ना ही वो राह नजात का सबब बन सकते हैं। और हिंदुइज्म के अंदर फिर जो 7 जन्म वहां पाए जाते हैं, तो जन्म तो एक दफा ही जिस्म के अंदर होता है और फिर इंसान रहलत कर जाता है, मगर 7 जन्म, ये गलत तालीमात, झूठी फॉल्स टीचिंग वहां आती है जहां ट्रुथ नहीं होती। तो जहां सच्चाई होती है वहां पर आज़ादी, रिडेम्पशन, नजात, फजल, बरकत वकू के अंदर आती है। तो क्राइस्ट ने फिर बनी इसराइल को भी उनसे, बुत परस्तों से हटाया और उनको कहा कि सच्चाई से वाकिफ रहोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो वो कहने लगे हम तो अब्राहम की नस्ल है, हम तो कभी गुलामी में गए नहीं। हालांकि वो मिस्र की गुलामी में थे, पर अब जब रोमन के पीरियड के अंदर उस वक्त थे तो वो सोचते हैं कि हम तो अंडर रोमन गवर्नमेंट है, पर गुलामी के अंदर, स्लेवरी के अंदर नहीं। वो उस वक्त स्लेवरी में तो नहीं थे, मिस्र की तरह की गुलामी में, पर वो गुनाह के गुलाम थे, मौत उनके ऊपर थी, गुनाह उनके ऊपर, शैतान राज करता था। और यही कहा कि अगर तुम इब्लीस की मानते हो तो इब्लीस तुम्हारा बाप है। तो तुम मेरी बातें यानी जो ट्रूथ की है नहीं सुनना चाहते, क्योंकि क्राइस्ट ने वाजे उनको कह दिया था कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, लिखा मेरे बगैर कोई आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। तो राह, हक, ट्रूथ की बात क्राइस्ट ने ये क्लेम किया है। और दुनिया के रिलीजन अगर अपने आप को सच्चाई में कहते हैं तो सच्चाई में रहने वाला बुत परस्ती में नहीं हो सकता, सच्चाई में रहने वाला गलत तालीमात में नहीं हो सकता, सच्चाई में रहने वाला नफसानी ख्वाहिश और नलायक हरकतों के अंदर नहीं होगा, जंगो जदल के अंदर नहीं होगा, वो गुनाह और मौत के अंदर नहीं होगा, वो रूह बदन जान के अंदर पाकीज़गी में आकर वो ट्रू गॉड की वर्शिप करेगा। तो सच्चाई जहां पर होगी वहां खुदा की वो सारी तालीम जो राइचियसनेस के हवाला से है, जो ट्रुथ के हवाला से है, वहां झूठ नहीं होगा, वहां पर बुत परस्ती नहीं होगी। तो हिंदुइज्म के अंदर यहाँ कोई ऐसा रिलीजन जो गलत तालीमात रखता है, जो झूठ उनकी जिंदगियों में पाया जाता है, गाली गलोच उनकी जिंदगियों में पाई जाती है, हर बुरा काम उनकी जिंदगियों के अंदर पाया जाता है, यानी जिस्मानियत और नफसानियत। इजराइल के अंदर मूसवी शरीयत आई और उनको तहारत और उनको जो सेक्रीफाइस दी गई ताकि उन कुर्बानियों के जरिए से वो रास्तबाज पाक होकर वो सच्चाई की तरफ आए और उसकी वर्शिप करें, पर उन्होंने बुतों की प्रस्तुत की। तो क्राइस्ट ने बर वक्त आकर उनको कहा कि सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, यानी झूठ में और बुत परस्ती के अंदर रहकर तुम गुनाह मौत से नहीं बच सकते। और ये क्लेम कर दिया कि राह हक मैं हूं। तो गोया राह हक की जब हम ट्रुथ की बात करते हैं, राह नजात की बात करते हैं, तो यीशु मसीह उसने अपने खून से, अपने कफारा से सारी दुनिया के लिए जान कुर्बान की और मारूसी गुनाह से, आदम की सिंफुल नेचर से निकाल कर रास्तबाज ठहराया। ये ट्रुथ है। और ये पिलातुस की अदालत के अंदर क्राइस्ट ने बाजे उसको भी कह दिया, जब वो ये कहने लगा क्राइस्ट को, क्या तू बादशाह है? तो उसने कहा हाँ, तूने खुद कह दिया। और फिर क्राइस्ट ने वजाहत की आगे, ये उस कोर्ट में कहा कि मैं इसलिए इस दुनिया में आया हूं और इसलिए पैदा हुआ हूं, आगे लिखा है, ताकि हक पर गवाही दूं, यानी हक पर, यानी वो ट्रू गॉड है, वो ट्रू इस दुनिया के अंदर आया, यानी सच्चाई की गवाही देने, सच्चाई पर, यानी
सच्चाई खुद क्राइस्ट मसाया जो खुदा से निकला है, और निकलने के सबब से हम उसे बेटा कहते हैं। और इस दुनिया में कलाम खुदा का तजस्सम उसने आकर सेक्रीफाइस दी। ये ट्रुथ जो है, इसके वसीला से दुनिया नजात पाई। और आगे क्राइस्ट ने कहा, और जो हकानी है वो मेरी सुनता है। तो इसके ऊपर जोर दिया गया है कि सच्चाई को सुनने वाला वो हकानी कहलाता है। तो आज इस दुनिया के अंदर बेशुमार मज़ाहिब पाए जाते हैं, और उनमें जब हम मसीहत की बात करते हैं तो मसीहत के अंदर क्लेम क्राइस्ट ने कर दिया है कि राह हक जिंदगी मैं हूं, यानी मैं ट्रू वे मैं ही हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, जिंदगी का नूर पाएगा, और मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जाता। और फिर ये कि हकानी मेरी सुनता है, तो ये बात वाज़े हो जाती है कि सच्चाई को सुनने वाला शख्स, यानी जो झूठ से नफरत करता है, जो बुत परस्ती से नफरत करता है, जो नालायक हरकतों से नफरत करता है, जो हरामकारी जिनाकारी बुरे कामों से नफरत करता है, हेट करता है और सच्चाई को फॉलो करना चाहता है, वो हकानी शख्स है। और जो हकानी शख्स का दावा कर दे तो गोया वो फिर ट्रुथ की तरफ आता है। और क्राइस्ट ने कहा वो ट्रुथ मैं हूं। तो गोया ट्रुथ को जानने वाला यानी हकानी शख्स, जो भी शख्स दुनिया के अंदर, ये बाइबल मुकद्दस का क्लेम है, वाज़े है कि हकानी मसीह की तरफ आएगा, यानी ट्रुथ से मोहब्बत करने वाले, सच्चाई को जानने वाले, सच्चाई के मुतलाशी जो हैं, जो सच्चाई को जानेंगे कि कहाँ पर है। तो हर रिलीजन का शख्स, अगर हिंदू अपने मजहब को, अपने रिलीजन को सच्चाई का कहने के बावजूद सच्चाई को ढूंढते हैं, तो हर दुनिया का शख्स सच्चाई का मुतलाशी है। और क्राइस्ट ने तो कह दिया कि मैं राह हक हूं, तो गोया हमारे पास ट्रू वे क्राइस्ट मिलता है, और हकानी उसकी तरफ आएगा। और जो हकानी नहीं है वो हरगिज नहीं आएगा, वो फॉल्स रिलीजन की तरफ जाएगा, और ट्रू रिलीजन की तरफ हकानी ही आएगा। और जब हम बाइबल मुकद्दस ये क्लेम करते हैं कि मसीहत के अंदर क्राइस्ट जो है ट्रू वे है, तो ऐसे तमाम मुतलाशियों को जो हकानी है, हम ये कहेंगे कि वो किसी भी रिलीजन के अंदर है। तो जब वो हक के अंदर रहना चाहते हैं तो फिर इस हक को भी पढ़ें, इस हक को भी सुने, क्योंकि अगर हकानी है तो वो मसीह की तरफ आएगा। तो इसमें कभी भी जबरदस्ती कोई शख्स मसीह की तरफ ना खींच के लाया जाता है, ना ही वो आएगा। इस तरफ वही आएगा जो हकानी है। हकानी यानी ट्रुथ को जानने और उसकी तलाश करने वाला, तो वो तलाश मसीह के अंदर आकर पूरी होती है, क्योंकि सिनलेस वही था, वही कुमारी मरियम से पैदा हुआ, उसी ने गुनाह उठाया, उसी ने इंसान की मौत को उठाया। क्राइस्ट ही ने यह क्लेम किया कि कोई मुझ में गुनाह साबित करे। तो जो आज राय हक और हकानी के हवाला से जो मैंने यहाँ बयान किया है, ये वाज़े है, ये क्लेम है कि जो ट्रुथ को सुनने वाला, पसंद करने वाला, उसकी तलाश करने वाला, वो डेफिनेट ट्रुथ ही की तरफ आएगा। तो अगर ट्रुथ में सब रिलीजन कहते हैं कि ट्रुथ के अंदर है, तो हर एक को दूसरे की बात को सुनना चाहिए, ढूंढे, मुतलाशी हो, उस तरफ जाए। तो गोया जब क्राइस्ट ने कहा है कि मैं ट्रू गॉड हूं, क्राइस्ट ने कहा मैं ट्रुथ हूं, मैं ट्रू वे हूं, राह हक हूं, तो यकीनन हकानी ही आएगा। और क्राइस्ट ने ये क्लेम कर दिया है कि वो हक पर गवाही देने के लिए आया है, और वो पैदा ही इसीलिए हुआ, और लिखा है हकानी उसकी सुनता है। तो हमारा ये क्लेम आसान हो जाता है कि कोई ज़बरदस्ती किसी को किसी रिलीजन में नहीं ले जा सकता। अगर कोई ट्रू रिलीजन है तो हकानी उसकी तरफ डेफिनेट आएगा, और हर हकानी को ये मुतलाशी है, तलाश करना चाहिए कि कहाँ ट्रुथ है। तो क्रिश्चियनिटी में ये वाज़े कर दिया गया है कि क्राइस्ट ने कहा कि वो ट्रुथ है, ट्रू वे है, और हकानी उसकी सुनेगा और निजात पाएगा, इसलिए कि सिंफुल नेचर से वही निकाल सकता है। तो जो बात क्राइस्ट ने कही इज़राइल को और सारी दुनिया को भी कही, सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। ट्रू वे को जानने वाला, क्राइस्ट को जानने वाला हकानी ही होगा और ट्रुथ की तलाश में होगा, यानी राय हक हकानी को मिलेगी। जो ट्रुथ से, सच्चाई से मोहब्बत रखते हो उसकी तलाश में करते, और वही आएगा जो हकानी है। और जो हकानी नहीं है और जो अबलीस को फॉलो करता है, अबलीस के कामों को फॉलो करता है, वो ट्रुथ की तरफ नहीं आएगा। इसलिए क्रिश्चियनिटी के अंदर कोई जोर आजमाई नहीं, कोई जबरदस्ती रिलीजन की तरफ खींचना नहीं है। इसमें वाज़े बात है कि राय हक की तरफ हकानी आएगा, यानी सच्चाई को पसंद करने वाला यकीनन वो आएगा। जैसे अमाल की किताब 10वें बाब के अंदर न्यू टेस्टमेंट के अंदर
कर्नीलियस जो गैर कौम से था, अतल्यानी था, वो ज्यूश नहीं था, वो पसंद तो यहूदियों के रिलीजन को कर रहा है, साथ साथ मुतलाशी भी था कि उसको रियलिटी पता चले, उसको ट्रुथ पता चले। और खुदा का फरिश्ता आकर उसको कहता है कि पतरस को बुलाए, तो वो पतरस को जो मसीह का डिसाइपल होता है उसको बुलाया जाता है, वो मसीह को जो ट्रुथ है उसका बयान करता है। और वो जो कर्नेलियस सच्चाई का वो जो हक्कानी था वो मसीह को कबूल करता है और सारा घराना निजात पा जाता है। आज दुनिया के अंदर ट्रू वे का सिर्फ क्राइस्ट ने ये क्लेम किया है, ऐलान किया है। और यूहन्ना की इंजील 8वें बाब के अंदर वाज़ेह है कि सच्चाई से वाकिफ रहोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और क्राइस्ट ने यही कहा कि मैं इसलिए इस दुनिया में आया और इसलिए पैदा हुआ हूं कि हक पर गवाही दूं और हकानी मेरी सुनते हैं, यानी ट्रुथ को फॉलो करने वाले क्राइस्ट को सुनेंगे। तो गोया दुनिया के अंदर ये बिल्कुल आसान है कि हर मुतलाशी जो ट्रुथ की तलाश में है, हकानी ही मसीह की तरफ आएगा, यानी ट्रुथ की तरफ, क्योंकि क्राइस्ट ही ट्रू वे है, ट्रुथ है और हकानी उसकी सुनते हैं। गॉड ब्लेस यू।